अगेंस्ट करेंगे, और अगर दोनों इनसफिशिएंट हैं, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, डिस्काउंट इज 1 lakh and the company has SPR 25,000, company has CR rupees 50,000, राइट. अब मेरे पास तो 1 लाख राइट ऑफ करने को है डिस्काउंट, SPR 25,000 है, कैपिटल रिजर्व 50,000 है, बाकी मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू करूंगी. मान लो क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है, तो होल ऑफ द अमाउंट आई विल बी ट्रांसफरिंग टू माय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट डेबिटेड, रेस्ट अमाउंट, that is 25,000. what I am going to write off, either we call it discount or we call it loss on issue of debentures. So this thing you have to keep in mind. Then yesterday I was telling you that though there will be no case of over subscription and under subscription, आम तौर पे इससे related question वो कम पूछता है, but he has made 2 or 3 illustrations related to over subscription, and same as we were doing in our share capital chapter. In case of over subscription we are forced to use pro rata, तो कुछ की rejections होंगी, कुछ pro rata के ऊपर हम उन्हें allot करेंगे. So let's see the case of over subscription. Who will tell me the meaning of over subscription? Anyone? Or write your answer in the chat box. What do you mean by over subscription and under subscription? Already done in our share capital chapter. Over subscription and under subscription. Yes, students, waiting for your replies. No answer till now. Over subscription versus under subscription. अब बिल्कुल एफर्ट नहीं करते हो, देखो यू आर सिटिंग इन योर कंफर्ट जोन एंड इवन देन यू आर नॉट रिप्लाइंग. ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को आता नहीं है, यू आर जस्ट नॉट मेकिंग द एफर्ट. What is the meaning of over subscription? When you receive the applications more than the issued debentures, means कंपनी ने कम करे हैं debentures issue, लेकिन कंपनी को applications ज्यादा debentures के लिए आ रही हैं. In that case, that is to be called the case of over subscription. Like company issued the number of debentures 1,25,000, but company got the applications for 2,75,000. So there is a gap of 1,50,000 more applications we received. Then how this case is to be dealt? हो सके तो 1.5 लाख का 1.5 लाख क्या कर दो, सीधा रिजेक्ट कर दो और बाकियों को अलाउ कर दो. यहाँ वो प्रपोर्शन लगाता है, इतनों को फुल अलॉटमेंट दे दो, इतनों को पार्टली दे दो और बाकी क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो. तो the way we were doing in our share capital chapter, same manner he will be telling here. So यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि जिनको आपने रिजेक्ट किया है उनका एप्लीकेशन मनी भी रिटर्न और रिफंड करना होता है. अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती. वी हैव मोर टू इशू, but the applications are coming in less number, so there is no need to worry in such situation. लेकिन यही अगर अंडर सब्सक्रिप्शन मेरा शेयर कैपिटल में होता तो वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला रूल मैं अप्लाई करती हूँ. 90% कम से कम इश्यूड कैपिटल का जब तक मेरे को नहीं आएगा आप शेयर्स अलॉट नहीं करते हो, लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा कोई रूल नहीं है. So let's see from your book how he is proceeding with regard to over subscription and under subscription. So this is the second topic we are picking today. चलो 7th देख लो. 6 is very easy. See 7th illustration from your book on page number 10.13. So whatever background he is setting, I am just writing it on the board ताकि मेरे को बार बार स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े. मैं हमेशा यही सुजेस्ट करती हूँ, जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है क्वेश्चन के वो पहले अपनी शीट पे लिख लो और उसके बाद सीधा क्वेश्चन करना शुरू करो. So let's see, this is 7th illustration in your book. Today you don't have your 5th period, that period is free for you. In 6th period we will be doing business studies. Ma'am has taken, Monica ma'am has taken half day, so that's why business studies period I will be taking. So for that you have to log in with my ID in 6th period, right? So in 7th illustration what he is doing, मैंने बार बार बोल रही हूँ, जब जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, पहले आप ये जज करने की कोशिश करो, इज इट इन रुपीस. अगर ये रुपीस के बिना है तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है. तो उसने पहली लाइन में क्या लिखा, टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स. अमाउंट कैसे निकलेगी,
100 के साथ मल्टीप्लाई करके 10% प्रीमियम का मतलब क्या है, ₹10 ही प्रीमियम है. हाउ दैट अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड, 20% ऑन 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 कहता है इंक्लूडिंग डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट सबको पता है 10 रुपए. ऐसे किया करते थे शेयर कैपिटल में. 25 मैंने अलग कर दिया, दैट इज फेस वैल्यू, और 10 रुपीज मैंने प्रीमियम अलग कर दिया. एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां तक 60 रुपए बन गए. 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. सो दिस टाइम आई नीड टू पास 3 कॉल्स, और हर कॉल की 2-2 एंट्रीज होती है, मींस मिनिमम 6 एंट्रीज तो मेरे को करनी है. और डिस्काउंट का केस है नहीं, डिस्काउंट वगैरह ट्रांसफर नहीं करना, प्रीमियम का केस है. हमारे पास देने को 10,000 शेयर्स थे. वी रिसीव्ड, दिस इज अप्लाइड, सॉरी दिस इज इशूड एंड दिस इज अप्लाइड. हमें एप्लीकेशंस आई 15,000 डिबेंचर्स की. Allotment was made on pro rata basis. Excess application money was adjusted against amount due on allotment. The due amount were received by the company on due dates. आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है. ठीक है, मैं पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव वर्किंग नोट्स में निकालती हूँ, जैसे निकाला करते थे वहां पे 25 से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 25 5 125, 12 कैरी हुआ, 25 और 12 37. So we received application money 3,75,000. मिलना कितना चाहिए था, 10,000 को 25 से मल्टीप्लाई करके, ये था received. This is due 2,50,000. So there is a difference of 125. This 125 we will not be returning back because it is pro rata. Rejection नहीं है. जब तक रिजेक्शन नहीं होती क्वेश्चन में हम कुछ भी रिफंड नहीं करते. So this 1,25,000 is excess with me, which I will be adjusting against allotment. Right? चलो एंट्रीज करनी शुरू करते हैं. इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, टेलीकॉम लिमिटेड, ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ टेलीकॉम लिमिटेड. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट इट. चलिए जी, ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ Telecom Limited, journal in the books of Telecom Limited. First entry, bank account debited to debenture application, and that amount I got it multiplied with number of debentures and with application money per debenture. मैंने कैसे निकाला, 15,000 की एप्लीकेशन आई, 15,000 को 25 से मल्टीप्लाई किया एंड द अमाउंट आई गॉट हियर. पहली एंट्री करिए फिर. Bank account debited to debenture application, that is 3,75,000. 3,75,000. अगली ट्रांसफर एंट्री, being application money received on 15,000 shares at the rate of 25 each debenture. अगली एंट्री ट्रांसफर एंट्री करवाओ. कितने परसेंट डिबेंचर थे भाई, 9%. मैं आमतौर पे मैं बार बार रिपीट करती हूँ एक ही सेंटेंस ताकि आपके माइंड में बात बैठ जाए. आई नेवर रीड द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन. व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड आई रोट ऑन द बोर्ड फर्स्ट, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज. राइट, व्हेन आई सी योर सैंपल पेपर ना, फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली ही आस्क्ड द जर्नल एंट्रीज. 2-3 क्वेश्चन डिबेंचर्स के डाले एंड एट इन वन क्वेश्चन एट द एंड ही आस्क्ड प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. वैसे मैं कह रही थी सारा चैप्टर लेजर बेस्ड है, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी पूछ सकता है, एंड ही में आस्क्ड टू प्रिपेयर सर्टेन लेजर अकाउंट, क्योंकि एक बार 6 नंबर में बोर्ड का पहले क्वेश्चन आया हुआ है. ही आस्क्ड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट. ही आस्क्ड प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. सो दैट आल्सो वी हैव टू लर्न. 1-2 इलस्ट्रेशन है अबाउट द लेजर अकाउंट. दिस इज डिबेंचर एप्लीकेशन 9% डिबेंचर. और जो बच्चों एक्सेस है वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होने, उसने खुद बोला था अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना. 2 डिबेंचर अलॉटमेंट. चलिए जी, एंट्री हमारे पास पहले से ही बनी हुई है. दिस इज व्हाट 3,75,000. कितना मिलना चाहिए था, 2,50,000 is to be credited. 125 is in excess, which we are going to adjust against. Yes, matching with the book. We are going to adjust against your allotment. Right? Come to the next entry now. See the bottom of the board. Now what to do? You have to pass the entry for making the allotment due, and this time allotment is with premium. Am I right? तो एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड to percentage debenture, that is 9% debentures, to SPR, that is security premium reserve. देखिए जी कैसे बनेगा.
It is basically 35. And you know, this time at the top, see, allotment is to be made due on number of debentures issued, not number of debentures applied. तो इस बार हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास अलॉटमेंट 3.5 लाख से आएगी, डिबेंचर्स 2.5 लाख से आएंगे और 1 लाख का आपका एसपीआर। अब बच्चों टोटल मेरे को 3.5 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 125 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, सो यू आर गोइंग टू रिसीव 225। अब आपने अलॉटमेंट रिसीव की कर दी है, एंट्री पास जर्नल एंट्री हियर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, इज इट विजिबल? देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, हाउ मच आई विल बी रिसीविंग? 2,25,000, क्योंकि 3.5 लाख में से ऑलरेडी मेरे को कितना मिल चुका है? फ्रॉम 3,50,000 ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड 1,25,000। ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया था, राइट? So we will be receiving 225. Very easy chapter. With little bit knowledge, you will be able to pass journal entries. Then 50 rupees is my first and final call. Again 50 is to be multiplied with 10,000. Done. So first call and final call due करिए. Debenture. First and final call account debited to 9% debentures. So that is 55 lakh. He said whole amount we are receiving. अगली एंट्री आप खुद करोगे. Bank account debited to debenture, first and final call. So like that way you need to proceed. See from your board. और आपकी बुक में लास्ट एंट्री क्या करी है उसने? Bank account debited to debenture, first and final call. Then he asked from you show it in your balance sheet. So balance sheet में पहले क्या आएगा? Reserve and surplus में security premium reserve. See the bottom of the board. This SPR, where do we show it? We will be showing it under the head reserve and surplus. और कितनी अमाउंट है देखिए वो 1 lakh. So he prepared the balance sheet for you. Shareholder funds में reserve and surplus है, उसके साथ नोट नंबर 1 लिखा और नीचे notes to accounts बनाया. That comes to us 1 lakh. और उसके बाद non current liability he made the main heading और उसके नीचे क्या है? long term borrowing. long term borrowing के आगे नोट नंबर 2 लिखा और उसकी डिटेल में नीचे लिखा 9% डिबेंचर्स. सो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आपको थर्ड बुक में पहले से ही करवाई होती है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट डिबेंचर्स एंड शेयर कैपिटल यू आर ऑलरेडी नोइंग. 8th करते हैं, उसमें भी प्रो राटा है. लेट्स सी 8th illustration फ्रॉम योर बुक, वेरी इजी अदरवाइज. पढ़िए 8th illustration. देखिए कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं. Is my sound clear to you? Mic is blinking. Yes. Yes, let's go ahead. This is 8th illustration. जो भी highlighting points होंगे, I will be writing on the board for you. This is Savoy Limited invited. हमने कितने इशू करे डिबेंचर्स? Issued debentures are 4,000. Each debenture is of ₹100. We are issuing it at 20% premium. Means ₹20 आपका प्रीमियम रहेगा पर डिबेंचर. हमें कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस आई? That is applied debentures. We got 6,000 applications. जैसे वहां पे एनालिसिस टेबल बनाया करते थे, यहाँ पे एनालिसिस टेबल इतना एडवांस्ड नहीं बनाना. फॉर योर नॉलेज ओनली आई एम जस्ट प्रोसीडिंग विद द टेबल, अदरवाइज नो नीड, राइट? सो दिस इज व्हाट अप्लाइड का पहला कॉलम होता था. इसका टोटल हमारा 6,000 आना है. दूसरा इशूड का होता था. चलिए देखें, 1200 जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें हमने कुछ भी नहीं दिया. इट मींस इनका रिफंड बनता है. जिन्होंने 1200 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था उनको हम लोगों ने कोई भी डिबेंचर नहीं दिया, फिर रिजेक्टेड देम. देन फुल अलॉटमेंट टू 400, 400 वालों को 400, यहाँ पे नो एक्सेस. बाकी बच्चे उसने बोला रिमेनिंग निकालो.
तो 6000 में से 1600 जब मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास बनता है 4400। 4400 वालों को 400 में ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैंने, इसका टोटल 4000 बनाना है, मींस मैंने उन्हें 3600। तो यहाँ पे आपका एक्सेस बनेगा because you are receiving more applications and you are allotting less number of debentures. उसने क्या लिखा, जो excess money है to utilize excess application money in part payment of allotment money. allotment money के against adjust करना, ठीक है, कर लेंगे. Journalize the above transaction if issue price is payable along with application. पहला केस, सारे पहला केस करेंगे, सारे का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल रहा है. इट मीन्स कि ओनली इन वन इंस्टॉलमेंट, और उस एप्लीकेशन को हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहे करेंगे. पहले पहला केस करते हैं और पहला केस आपका 2 एंट्रीज में खत्म हो जाएगा. देन ही इज सेइंग कि पूरे क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो. दिस टाइम आई एम रिसीविंग द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट. डन. अब क्योंकि यहाँ पे एक ही इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे एक्सेस का क्या करना है, दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटिस्ड हियर. क्योंकि उसने वैसे लिखा है जो एक्सेस मनी है इस केस में वो आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करनी है. तो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है कंबाइंड. तो लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितने की एप्लीकेशंस आई, 6000 की. 6000 को मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगी बिकॉज प्रीमियम के साथ आपको पैसा मिलेगा. 6000 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे 7,20,000 बनेगा. स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस आई एम सॉल्विंग when the whole amount he is receiving or the company is receiving in single installment, lump sum में, बैंक अकाउंट डेबिटेड. और जब पैसा एक इंस्टॉलमेंट में मिलता है वी ओपन अ कंबाइंड अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. दैट कम्स टू मी 7,20,000. डन. अब मैंने अगली एंट्री ट्रांसफर की करनी है. उस ट्रांसफर की एंट्री में मैंने अमाउंट को ड्यू भी करना है, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिखाना है और मैंने रिफंड की एंट्री भी करनी है. अभी कैलकुलेशन करते हैं. लेट्स सी. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स थे बेटे? हैज ही मेंशन्ड अबाउट द परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स? नहीं, आपकी बुक वाले ने भी परसेंटेज लिखा लेकिन डैश कर दिया. He wrote dash percentage because in the question he is not mentioning about the percentage of debenture. So we have to make a habit कि परसेंटेज हमने साथ में प्रीफिक्स करना है. आमतौर पे वो देगा परसेंटेज, लेकिन इन एनी केस ही स्किप्स इट. वी विल बी राइटिंग इट डैश परसेंटेज. राइट. टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस वगैरह वाला केस होना ही नहीं. वी आर हैविंग अ सिंगल इंस्टॉलमेंट टू बैंक. देखिए जी, 7,20,000 हमारे पास देने को कितने डिबेंचर्स थे? 4,000. 4,000 is to be multiplied with 100, 4 lakh. SPR 4,000 into 20, right? That will be 80,000. Yes, this is 4 lakh 80,000. डिफरेंस जो होगा वो आपने वापस करना है, क्योंकि इस केस में एक्सेस मेरा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट ही नहीं हो सकता. Why? Because allotment is not my second installment. I am receiving the whole amount in one lump sum. तो यहाँ पे एक्सेस मेरा जितना माइनस करके आएगा दैट इज 2,40,000. दिस इज द फर्स्ट केस यू हैव टू लर्न. एक्सेस का केस अराइज ही कब होगा? व्हेन यू आर रिसीविंग द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स. सो इसके बिल्कुल पैरेलल आई एम सॉल्विंग द सेकंड केस व्हेन दिस 120 रुपीस ही इज रिसीविंग इन इंस्टॉलमेंट एंड अबाउट इंस्टॉलमेंट ही हैज मेंशन 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम ऐड है. 30 + 20 हो गया. Balance on first, this is 70, 50. 50 on first and final call. So यहाँ पे हमारा excess आएगा which I will adjust against allotment. पहली एंट्री सेम रहेगी, चेक करो बुक में से. First entry is going to be same? नहीं, first entry how can it be same? Because this time we are not receiving the whole amount, we are just receiving 20. Rupees 20. Rupees 20 is to be multiplied with 6,000. So 1,20,000 only we will be receiving at the time of application. यहाँ पे तो सारा पैसा एक बार में मिल गया था. करवाओ जी पहली एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिटेड. This time I will not be calling it application and allotment, or rather I will be calling it only application. So this is going to be only application. Bank account debited. To debenture application 6,000 into 20 rupees. That comes to me 1,20,000. आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है जर्नल का before passing the journal entries. Done. Being application money received on 6,000 debentures at the rate of 20 each. अब ट्रांसफर एंट्री करवाइए.
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स टू, अब यहाँ पे एसपीआर नहीं आएगा बिकॉज एसपीआर इज गोइंग टू बी विथ योर अलॉटमेंट, ठीक है। 2% डिबेंचर्स टू व्हाट, डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, जो एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। कौन सी कैटेगरी का एक्सेस होगा, इस कैटेगरी का, जिनको 44 के लिए अप्लाई किया था और हमने 3600 दिए टू बैंक। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज 1,20,000, मिलना कितना चाहिए था बेटे, 4,000 इंटू 20, 80,000। परसेंटेज डिबेंचर्स में 80,000 डालो, बैंक में वापसी कितने की होगी, 1200 वालों को आपने कुछ नहीं दिया, 1200 वालों ने जब अप्लाई किया होगा तो 20 रुपए के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया, मेरे हिसाब से बैंक में 24,000 था, 1,04,000 बना, 16,000 जो एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। चेक फ्रॉम योर बुक, यस मैचिंग, सी फ्रॉम द bottom of the book. So this 16,000 I calculated as a balancing figure, this 120 I filled, this 80,000 I filled, this refund also I filled. How refund I calculated, 1,200 is to be multiplied with 20, so 24,000 is our refund amount which we returned back, ठीक है। अब अगली एंट्रीज तो आप सबको आती है भाई, अलॉटमेंट ड्यू करें, यहाँ पे देखना डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स, और साथ में क्योंकि एसपीआर भी है, दिस इज 30 + 20 टू एसपीआर करवाइए जी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड वर 4,000, सी द टॉप, 4,000 डिबेंचर्स वी वर हैविंग, 4,000 is to be multiplied with 50, that comes to me 2 lakh, then 4,000 is to be multiplied with 30, that is 120, 4,000 is to be multiplied with 20, so that comes to me 80,000। मिलना कितना चाहिए था बेटा जी, 2 लाख, उस 2 लाख में से 16,000 ऑलरेडी मिल चुका है अलॉटमेंट का, तो 2 लाख में से 16,000 माइनस कर दो, बुक में से चेक करो 184। तो डिबेंचर्स के केस में आमतौर पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, दिस वाज ओनली द चैप्टर ऑफ योर शेयर कैपिटल whereby we were having two alternative to pass the entry for receiving allotment, और यहाँ पे वैसे तो डिफॉल्ट होना ही नहीं है और कॉल्स इन एरियर यहाँ पे अराइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेट अमाउंट वी आर रिसीविंग बिकॉज 16,000 पहले से ही हमें एक्सेस मिल चुका है, सो नेट अमाउंट वी आर रिसीविंग, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट, दिस इज 1,84,000 डेबिट, 1,84,000 credit. First and final call you can pass on your own, 4,000 into 50, that is 2 lakh. Debenture first and final call to dash percentage debenture, and we received it fully. Bank account debited to debenture first and final call, that is 2 lakh. Done. Under subscription हम orally भी discuss कर लें तो that will be fine with us, because under subscription में कोई भी complexity नहीं है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उन सबको हम अलॉट कर देते हैं, बिकॉज वी हैव मोर डिबेंचर्स टू गिव देम बट वी रिसीव लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम देयर साइड, सो होल ऑफ द एप्लीकेंट्स दे विल गेट द अलॉटमेंट। 11th एलोकेशन करवा देती हूँ सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरह से वो स्टेटमेंट को फ्रेम करता है। सी 11th एलोकेशन ऑन पेज नंबर 10.17, 10.17 पेज नंबर ओपन करिए। यस, दिस एलोकेशन वी विल बी एबल टू सॉल्व। This is 11th illustration. 9th and 10th are very simple for your own practice that you can see. चलिए जी 11th. Let's read the highlighted point of the question. क्या लिखा है उसने? Honey Limited is the name of the company. Issued. कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं? 10,000. 9% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, वो 100 रुपीज कैसे कवर करने हैं? 60 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट।
हमें रिसीव हुई एप्लीकेशंस 9000 डिबेंचर्स की, सो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट हमने सबको कर दी और सारा पैसा मिल गया. हाउ सिंपल इट इज, ओनली 2 इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, with 4 entries I will be able to complete my question, isn't it? करिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉर्मेट के साथ ही करो. टू डिबेंचर एप्लीकेशन 60 into 10,000, that comes to me 6 lakh. No, 10,000 की एप्लीकेशन थोड़ी ना आई है. वी गॉट द एप्लीकेशन ऑफ 4,000. जितने की एप्लीकेशन आई है उसको एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 9,000 is to be multiplied with 60. It comes to me 540. Being application money received on 9,000 shares at the rate of 60 per debenture. Am I right? Now transfer entry. Debenture application account debited to 9% debentures. 540. ट्रांसफर हो गया, नो रिफंड, नो कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू. एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स. दिस टाइम 9,000 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 40, 360. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% debentures. So that comes to me 360. Whole amount we are receiving. Bank account debited to debenture allotment. That is 3,60,000. That is 3,60,000. Done. See from the bottom. So already I told you when I started reading the question that it is going to be ended with the help of 4 entries only. ESBA जो अगले बॉक्स में है, though it is not a part of our syllabus, but we will just discuss it at the last. ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड उसने 2 एग्जांपल्स भी बनाई हैं. Yes, one thing more I just wanted to discuss with you, fixed charge and floating charge. When I was discussing the meaning of debentures or types of debentures with you, that time I told you that we will pick later on. तो देखना जरा fixed और floating charge का क्या लिखा है उसने. On page number 10.3, which he can ask in theory, right? जैसे हम लोगों ने कहा था secured debentures हैं और unsecured debentures हैं. Secured debentures वो होते हैं जिनको आपने किसी assets को गिरवी रख के सिक्योर किया होता है. मींस आपने अपने लेंडर्स को बोला होता है इन केस वी आर नॉट एबल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट टू यू और द इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स टू यू, यू हैव द फुल राइट टू सेल ऑफ दीज एसेट्स जिनके ऊपर हमने चार्ज लगाया है. तो आप एसेट्स को बेच के अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड चार्ज. देखते हैं इसने क्या लिखा है. द एक्सप्रेशन चार्ज मीन्स सिक्योरिंग अ लोन बाय मॉर्टगेजिंग. मैंने भी बोला था ना मॉर्टगेज करते हैं हम अपना वो पर्टिकुलर एसेट उस लेंडर के आगे गिरवी रख देते हैं. By mortgaging specific assets towards the loan, it means that if the company does not meet its obligation, the lender can secure his payment from the asset mortgage, or in case of winding up of the company, from the official liquidator. मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है जिसकी ड्यूटी होती है उस कंपनी के सारे एसेट्स बेच के कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसकी सारी लायबिलिटीज की क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है. तो अगर आपको कंपनी ने पहले से ही कुछ एसेट्स गिरवी रखे हुए होते हैं तो उन डिबेंचर होल्डर्स के पास फुल राइट होता है कि कंपनी के एसेट्स को बेच के अपनी अमाउंट की रिकवरी करवाना. अ चार्ज में बी ईदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग. अ चार्ज क्रिएटेड ऑन डेफिनेट एसेट्स ऑफ अ परमानेंट नेचर. लाइक जब आपने बोल दिया दिस लैंड इज योर्स, I took the loan of rupees 50 lakh from you and this land cost rupees 60 lakh. तो जब कभी भी आपको लगेगा कि आई एम मेकिंग एनी डिफॉल्ट, आप इस लैंड को बेच के अपनी लोन की रिकवरी कर लेना. जो फालतू पैसा बचेगा वो हमें वापस कर देना. तो जो एक्सेस मनी बचती है उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वो लेंडर की ड्यूटी होती है कंपनी को वापस करने. ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड नेम आपने बता दिए. यू जस्ट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द एसेट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल फिक्स्ड चार्ज. और कई बार आप कहते हैं all the assets are being mortgaged for your loan. ठीक है, वहां पे आप स्पेसिफाई नेम नहीं देते हो, उसको हम फ्लोटिंग चार्ज कहेंगे. देखो क्या लिखा, a charge is a floating when no specific asset but all assets except those charged by way of fixed charge are charged as security. उसमें से वो छोड़ दो जो आपने फिक्स्ड चार्ज की फॉर्म में रखे हैं.
बाकी जो सारे एसेट्स बचे उनको हम मॉर्टगेज करते हैं अपने लेंडर्स के आगे. A floating charge holder has a preference over an unsecured creditor for settling his claim in the aim. हाँ, कहता जिनके आगे हम लोगों ने फ्लोटिंग चार्ज रखा है, जिन लेंडर्स का, उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो पहले एसेट्स को बेच के, सारे एसेट्स को बेच के उन्हें पैसा मिलेगा. ठीक है, अगर कंपनी वाइंड अप होती है. इन कंपैरिजन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से हैं? जिनको हमने कोई प्लेज ही नहीं रखा, जिनके आगे हम लोगों ने कोई भी चीज मॉर्टगेज नहीं रखी. ठीक. So floating means all the assets are being put under charge of the lender for securing the loan given by them to us. And fixed means when we specify the names of assets, we tell them these are the assets which you can sell off in case we make any type of default in our obligation to repay the money back to you, or we make the default in the payment of interest on your loan provided to us. Okay, so this is what fixed charge on assets and floating charge on assets. So these two terms you have to learn, right? Rest of the things we will continue on Monday.